Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine. Students, today we are going to learn about H.C.F. So let us see what is H.C.F. The highest common factor of two or more number is the highest number that divide the numbers exactly. It is also called as greatest common divisor. ऐसा बिग नंबर जो 2 या 2 से अधिक नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे उसे ही HCF कहते हैं या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहते हैं. सो लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स. एग्जांपल 1. फाइंड द HCF ऑफ 24, 36 and 42. Student, here we have to find the HCF and we know that HCF is the highest common फैक्टर. हाईएस्ट मीन जो सबसे बड़ा हो, कॉमन मीन्स जो सेम हो या एक जैसा हो, and factor means divisor. So student, here we have to find the HCF of 24, 36 and 42. So let us start, but before we start we have to follow the 3 steps. Step 1, find all the factors of each given numbers. जो भी नंबर हमें दिया है पहले हम उसके सभी फैक्टर्स को फाइंड आउट कर लेंगे. Now step 2, find कॉमन फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर. सो स्टूडेंट, जब हमने सारे फैक्टर्स फाइंड कर लिए तो स्टेप 2 में अब हम सारे कॉमन फैक्टर्स को फाइंड आउट कर लेंगे. कितने नंबर हैं जो सिमिलर हैं, एक जैसे हैं. नाउ स्टेप 3, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स obtained in step 2 is the required highest common factor. इसके बाद जितने भी कॉमन फैक्टर हमें स्टेप 2 में मिले हैं उसमें से जो सबसे बिग फैक्टर होगा वही क्या होगा, HCF होगा. सो लेट अस फाइंड आउट द HCF ऑफ 24, 36 एंड 42. सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम 24 के सारे फैक्टर्स को फाइंड आउट कर लेंगे. एंड वी नो दैट फैक्टर्स ऑफ 24 is 1 into 24 is equal to 24, and then 2 into 12 is equal to 24, and then 3 into 8 is equal to 24, and then 4 into 6 is equal to 24. So student, here we write all the factors of 24. So let's write factors of 24 are is equal to 1, then 2, 3, and then 4, and then 6, 8, 12 and 24. So student, these are the factors of 24. In similar way, we find out the factors of 36. So let's find out all the factors of 36. As we know, 1 is a factor of all numbers, so we start with 1. 1 into 36 is equal to 36, and then 2 into 18 is equal to 36, and then 3 into 12 is equal to 36, and then 4 into 9 is equal to 36. At last 6 into 6 is equal to 36. As we already know, factors जो होते हैं वो limited होते हैं. So these are the factors of 36. So here we write all the factors of 36. Factors of 36 are 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 and then 36. So student, at last we find out all the factors of 42. So let us start. So we start with 1. 1 into 42 is equal to 42. As we know, it is a even number. So 2 into 21 is equal to 42. 3 into 14 is equal to 42. At last 6 into 7 is equal to 42. So student, these are the factors of 42. So let's write here. Here we write all the factors of 42. So let's write factors of 42 are 1, then 2, 3, and then 6, 7, 14, 21 and then 42. So student, here we have completed step 1. अब हमें step 2 में क्या करना था? step 2 में हमें कॉमन फैक्टर्स को फाइंड आउट करना था. तो पहले चेक कर लेते हैं कि कॉमन फैक्टर्स है कौन से. कॉमन फैक्टर मतलब ऐसा नंबर जो सेम हो. सो हियर 1 इज अ कॉमन फैक्टर एंड देन 2 इज ऑल्सो कॉमन, और इसके बाद 3 भी कॉमन है तीनों में. इसके बाद 4 को चेक करते हैं. 4 जो है वो 24 और 36 का तो फैक्टर है लेकिन 42 का नहीं है. सो ये कॉमन नहीं है तो हम इसे छोड़ देंगे. उसके बाद 6 तीनों में है तो 6 भी क्या है, कॉमन फैक्टर है. इसके बाद कोई भी नंबर कॉमन नहीं है. सो नाउ इन स्टेप 2 हियर वी राइट कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24, 36 and 42 are 1, 2, 3 and 6. So स्टूडेंट, यहाँ पे हमें 24, 36 और 42 का 4 कॉमन फैक्टर मिला है जो कि है 1, 2, 3 and 6. अब इन चारों कॉमन फैक्टर में सबसे ग्रेटेस्ट जो है वो 6 है. अकॉर्डिंग टू रूल HCF ऑफ 24, 36 and 42 is 6, क्योंकि यही इन तीनों में सबसे
greatest है. Now let us understand it with help of another example. Example 2. Find the factors of 120 and 225. So student, as we have done in previous question, same way we used to find the HCF of 120 and 225. Let us start with 120. अब हम 120 के सारे फैक्टर्स को फाइंड आउट कर लेंगे. स्टूडेंट, यहाँ पे 120 थोड़ा सा बिग है, तो आप चाहे तो इसे डिवाइड कर करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं. सो लेट्स डिवाइड 120 बाय 1 एंड द आंसर इज 120. नाउ 120 is also divisible by 2 and the answer is 60. Next 120 is divisible by 3 according to divisibility rule. ये 3 से divisible होगा क्योंकि इसके डिजिट का सम करने पर हमें 3 मिलता है जो कि 3 का मल्टीपल है. So in 40 time it is divisible by 3. Now 120 is also divisible by 4 in 30 times. Now check it with 5. Yes, it is also divisible by 5 in 24 times. Now 120 is divisible by 6 and then it is not divisible by 7 और 8 से यह 15 टाइम में divisible है और इसके बाद 120 10 से divisible होगा 12 टाइम्स में. So student, these are the factors of 120. तो factors of 120 are 1, then 2, 3. As you know, quotient and divisor is a factor. Then we write 4, 5 and 6 and then 8 and then 10, 12, 15, then 20, 20 के बाद 24, 24 के बाद 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 60 and then number itself 120 is a factor of 120. So student, these all are the factors of 120. So student, in similar way we find out all the factors of 225. जैसे कि आपको पता है 1 is a common factor of all numbers. So हम पहले इसे 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 225 नंबर इटसेल्फ. इसके बाद क्या ये 2 से डिविजिबल होगा? नो. अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल इसकी 1 की डिजिट ऑड है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा. तो हम इसे अब नेक्स्ट नंबर से चेक करेंगे. क्या ये 3 से डिविजिबल है? यस, क्योंकि इसके डिजिट का सम करने पर हमें 9 मिलता है जो कि 3 का मल्टीपल है. तो इसका मतलब ये 75 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा 3 से. अब इसके बाद ये 4 से डिविजिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल. तो 225 इसके बाद किससे डिविजिबल होगा? 5 से, क्योंकि इसके 1 की डिजिट 5 है. तो ये 5 से कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा? 45 टाइम्स में. ओके. अब इसके बाद ये किससे डिवाइड होगा? ये 6 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं हुआ, सिर्फ 3 से हुआ है. और जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है वही 6 से होता है. तो ये 6 से डिविजिबल नहीं है. 6 के बाद ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल. 7 के बाद ये 8 से भी डिविजिबल नहीं है. सो वी डिवाइडेड बाय 9. क्या ये 9 से डिविजिबल है? यस, ये 9 से डिविजिबल है. कितनी बार में? 25 टाइम्स में. एंड at last 225 is divisible by 15 in 15 times. So student, these are the factors of 225. So let's write here factors of 225 are. So student, here we have completed step 1. हमने दिए हुए नंबर्स के सारे फैक्टर्स फाइंड कर लिए. अब इसके बाद स्टेप 2 में हम इसके कॉमन फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पर कॉमन 1 है, 1 के बाद 3 कॉमन है. अब 3 के बाद नेक्स्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 5 है. 5 के बाद कौन सा नंबर है जो कॉमन है यहाँ पे? यस, 5 के बाद का यहाँ का नेक्स्ट कॉमन नंबर है 15 और इसके बाद कोई भी नंबर कॉमन नहीं है. सो स्टूडेंट, इन स्टेप 2 हियर वी राइट कॉमन फैक्टर्स ऑफ 120 and 225 are 1, 3, 5 and 15. So student, यहाँ पर 15 जो है सबसे बिगेस्ट फैक्टर है. तो इसका मतलब 120 and 225 का HCF जो होगा वो 15 होगा. So here we write HCF of 120 and 225 is 15. So student, this is how you can find out the HCF of any given number. बस आपको 3 स्टेप को ध्यान में रखना है. पहले आपको दिए हुए नंबर्स के सारे फैक्टर्स फाइंड कर लेने हैं. याद रखना है कि कोई भी फैक्टर्स छूटना नहीं चाहिए. और फिर इसके बाद हमें स्टेप 2 में उसके सारे कॉमन फैक्टर्स को फाइंड आउट कर लेना है. और उसके बाद स्टेप 3 में जो सारे कॉमन फैक्टर्स हमने फाइंड किए उसमें से जो सबसे ग्रेटेस्ट होगा वही HCF होगा. सो स्टूडेंट, नाउ इट्स प्रैक्टिस टाइम. हियर आई हैव गिवन सम क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस. प्लीज डू इट एंड चेक योर नॉलेज एंड विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. Till then, thank you. Bye bye. Take care.